Hello, welcome back to our YouTube channel. Our today's topic is exercise 3.1 solve questions from 6 to 10. The sixth question is find the values of x, y and z from the following equations. Okay, so here you have given the matrix are equal. So here what is the solution? Solution will start from 4 is equal to y एंड 3 इज इक्वल टू z. आपको ये मैट्रिक्स को इसके साथ मैच करना है, इसको इस एलिमेंट को इसके साथ मैच करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ. इक्वल मैट्राइसेस की डेफिनेशन आपको पता है कि व्हेन द मैट्राइसेस आर इक्वल, व्हेन द ऑर्डर्स आर सेम एंड द एलिमेंट्स आर सेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैट्राइसेस. सो हियर यू कैन कंसिडर y इज इक्वल टू 4, 3 is equal to z or z is equal to 3 and x is equal to 1 and 5 is equal to 5. It is possible. Okay. So what are the solution? What is the solution? So solution will be y is equal to 4, z is equal to 3 and x is equal to 1. These are the solution. Now what is the second question? Second question is x plus y column wise 5 plus z 2 and x1. Okay, so here you have to make the equations. Here this is you have given the matrix, you have given two matrices x plus y 2 5 plus z x into y, and the other matrix is 6 2 5 and 8. This given matrices are equal, so here you will equalize. So solution will be, we have given the matrices are x plus y to row wise 5 plus z x into y row wise is equal to 6 2 5 and 8. फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर है जैसा हमने ऊपर वाले में किया था, इसमें किया था, सेम उसी तरीके से आपको ये भी करना है. यानी कि आपको क्या लेना है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड, थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ इज फोर्थ. ओके, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सवाल हल करना है. सो कंसीडर फर्स्ट वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2 इज पॉसिबल. ओके, सो थर्ड वन, ये वाला एलिमेंट a, व्हाट इज दिस एलिमेंट फ्रेंड्स, a2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. So 5 plus z is equal to 5 and xy is equal to 8. Okay, हम यहाँ पर सबके पार्ट बना देते हैं and then after we'll find the values of x and y and z. So here what is x? First हम यहाँ से कौन सा देख लेते हैं, यहाँ से z का हम देख लेते हैं. z is equal to 5 है, ये वाला 5 हम यहाँ ले आएंगे. So 5 minus 5 is equal to 0. z is equal to 0. ओके, सो यहाँ पर और व्हाट इज y बाय y की वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर y की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए 8 बाई एक्स. ओके, यहाँ पर अब y की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दीजिए x प्लस वाई वाली इक्वेशन में. सो x और y की वैल्यू हम यहाँ पर कर देते हैं 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 6. ओके, सो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या है, x इंटू 1 x. सो x को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x. ओके, और यहाँ पर हम देख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 8. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमने ये जो 8 यहाँ पर रखा है इसको हम प्लस कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. Right, this is 0. Now what are the factors of this equation? What are the factors of this equation? So factors are x, 8 1s are 8 and 4 2s are 8. आपको प्लस करना है. So x minus 4 into x minus 2 are the factors. Okay, so what are the values? So x is equal to 4 and x is equal to 2. Okay, so what are the values we have? Now find out y. y इज इक्वल टू y की हमें दो वैल्यूज मिलेगी, उसी तरीके जिस तरीके से हमें x की वैल्यू मिली है. सो y विल बी 8 बाई 4 फर्स्ट इफ योर x इज इक्वल टू 4. ओके, x इज इक्वल टू 4 देन y विल बी 4 2s are 8. So y will be 2
Okay, when x is equal to 4, y will be 2, and when x is equal to 2, then y is equal to 8 by 2. So 2 4s are 8. When x is equal to 2, y is equal to 4. So we have how many values? We have two values. X is equal to 2, 4, and y is equal to 2, 4, and z is equal to 0. Right, friends? So this is our second question. Our third question is, we have given again two matrices and they are equal. X plus y plus z is equal to, x plus y plus z column wise, x plus z, y plus z, and the other matrix 9, 5 and 7. Okay friends, so यहाँ पर हमें वापस से इक्वल करना है. So here what is the solution? Solution will be x plus y plus z is equal to 9, right? X plus z is equal to 5 and y plus z is equal to 7. So friends, आप देख लीजिए कि आपको पहले कौन सी वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर देखिए आप y plus z is equal to 7 और फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है? x plus y plus z is equal to 9. तो यहाँ पर क्या हम y plus z की वैल्यू 7 फिक्स कर सकते हैं? तो कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम y plus z की वैल्यू रख देंगे 7. सो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो x plus y plus z की वैल्यू क्या है? 7 है. सो 7 is equal to 9. So what is x? X will be 9 minus 7. x is equal to 2. This is our first equation. x की हमारे पास वैल्यू आ गई और अब हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं. x की वैल्यू अब हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देते हैं. सो x is 2 plus z is equal to 5. So z is equal to 5 minus 2. So z is equal to what? 3. So हमारे पास z की वैल्यू आ गई. यहाँ पर अब हमारे पास क्या करना है? हमें x प्लस z की वैल्यू अब हमारे पास है. तो यहाँ पर हम चाहें तो x और z की वैल्यू रखकर भी x और z की वैल्यू रखकर भी y निकाल सकते हैं और x प्लस z की वैल्यू 5 रखकर भी हम y निकाल सकते हैं. तरीका आपके हाथ में है. यहाँ पर हम x प्लस z की वैल्यू रख देते हैं, 5 इस इक्वेशन में रख देते हैं. सो वी हैव x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9. x प्लस z की वैल्यू हम 5 रख देते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद y प्लस 5 इज इक्वल टू 9. और दिस इक्वेशन गिव्स अस y इज इक्वल टू 9 माइनस 5. सो y इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4. सो y इज इक्वल टू 4. सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव x y z वैल्यू. x इज इक्वल टू 2, y is equal to 4 and z is equal to 3. Okay? Okay friends, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको क्या करना है? Find the values of a, b, c and d from the equation. Okay? हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है. Again the matrices are equal. Okay? So अब हमें क्या करना है? इसका जवाब फ्रेंड्स आप इजीली दे सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a माइनस बी इज इक्वल टू -1. ओके. सेकेंड हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है. समझिए कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है. इक्वल मैट्रिसेस के डेफिनेशन के थ्रू फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, थर्ड वन इज थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज सेम एज फोर्थ वन. सो हियर a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a plus c will be 5 and the next one 2a minus b will be 0 and 3c plus d is equal to 30. Now friends, अब आप देखिए जरा कि यहाँ पर हमें सबसे आसानी पहले किसे फाइंड करने में है. सो सबसे पहले हमें आसानी किसको फाइंड करने में है जरा देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. 2a plus c is equal to 5 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर 2a रख देते हैं और माइनस बी इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन रख देते हैं. यहाँ से हम डायरेक्ट माइनस प्लस और माइनस ओके कैंसिल वाली इक्वेशन का यूज करके हम इसे कैंसिल कर सकते हैं. तो पहले हम ये कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद c प्लस बी और b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से आपको 5 मिलेगा. सो ये इक्वेशन हमारे पास एक बन गई. b प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 13. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करेंगे फ्रेंड्स 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 2a ले लीजिए
और b को सामने भेज दीजिए, तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी b/2। ओके, सो सेम हम यहाँ पर b/2 जो है वो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, और सॉरी ये तो a की वैल्यू है, b/2 हम यहाँ पर रख सकते हैं a की जगह पर। a की जगह पर हम b/2 रखते हैं, माइनस b इज इक्वल टू -1। 2 हमारा एलसीएम है, सो b माइनस 2b, और ये जो 2 है वो यहाँ चला जाएगा, सो इट विल बी -2। तो यहाँ पर 2b में से एक भी चले गए, तो यहाँ पर मिला हमें -b इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस विल कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ b इज इक्वल टू 2। ओके, b इज इक्वल टू 2 की वैल्यू अब यहाँ पर हम रख देते हैं, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। b इज इक्वल टू 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। इट विल बी 5 - 2, सो c विल बी 5 - 2 दैट मीन्स 3। सो c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3। और अब यहाँ पर b/2 है, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू रख देते हैं, b इज 2, सो a इज इक्वल टू 2/2, सो a इज इक्वल टू 1। ओके, a मिल गया हमें। नाउ अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू अब यहाँ पर हम रख देते हैं, तो 3 इंटू वॉट इज c, c इज 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, राइट। सो 3 3 is 9, so d is equal to 13 minus 9, so d is equal to 13 में से 9 चले गए 4, so d is equal to 4। so इस तरीके से हमारे पास a की कितनी वैल्यू है 1, b is equal to 2, c is equal to 3 and d is equal to 4। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स आपको दी है, ऑर्डर m क्रॉस n इज द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब हमारे पास m इज इक्वल टू n हो। स्क्वायर कब बनता है फ्रेंड्स, जब चारों के चारों जो बाजू है वो सही हो, मतलब एक जैसी हो, तब हमारे पास स्क्वायर बनता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, जब m इज इक्वल टू n होगा, तो मतलब हमारा c जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब हमें यहाँ पर अगेन x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, y plus 1 is equal to 8, 2 minus 3x is equal to 4. So let's just make the pairs. Okay, so our solution will be 3x plus 7 is equal to 0, y minus 2 is equal to 5, or you can consider 5 is equal to y minus 2, y plus 1 is equal to 8 and 2 minus 3x is equal to 4. Okay, so let us just do this equation. So यहाँ से पहले हमारा y आ जाएगा 5, 2 वहां पर ले जाएंगे, so y is equal to 7. ओके, अब यहाँ पे हमें 7 मिल गया है, तो ऑफ कोर्स y plus 1 is equal to 8, so y is equal to 7 is the right answer. हमें y मिल गया, यहाँ से हमें 3x है, ये 3x है, 3x is equal to -7, so x is equal to -7/3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। तो आप फाइंड करें कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 7/3 और y इज इक्वल टू 7 नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो इस MCQ में दी ही नहीं गई है। सो MCQ इज क्या हो सकता है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, राइट। नाउ दी व्हाट इज द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एंड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि 0 और 1 जिसकी एंट्री हो उस तरीके के 3x3 मैट्रिक्स हमें कितने बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक तो 0 की पूरी एंट्री बन जाएगी, एक 1 की एंट्री बन जाएगी, फिर एक जगह एक एलिमेंट में कहीं 0 होगा, कहीं 1 होगा, फिर कहीं 1 होगा, फिर कहीं 0 होगा। ऐसे जरा सोचिए कि 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है परम्यूटेशन के लिए। पहले तो आपको 3x3 की मैट्रिक्स आपको देखनी है कि 3x3 की मैट्रिसेस, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड है,
ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ओके, यहाँ पर आपके पास 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 and 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 1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप जरा सोचो कि किस तरीके से ये सवाल हम हल कर पाएंगे। कितनी ऐसे मैट्राइसेस होंगे जिसमें एक रो 0 होगी, एक कॉलम 0 होगी, या एक तीनों रोज 0 होंगी, या तीनों कॉलम्स 0 होगी, या तीनों कॉलम्स 1 होगी, एंड सो ऑन। बहुत सारे मैट्राइसेस यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पर परम्यूटेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर यूज होगा। परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट से आप ये वाला सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, 1 और 0 एंड 1। हमारे पास पॉसिबिलिटी कितने एलिमेंट्स की है, 2 एलिमेंट्स हम भर सकते हैं। यहाँ पे 2 एंट्रीज हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल एंट्रीज कितनी है, 2। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितने की है, 2। यहाँ पर भी 2 की है, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हमने यहाँ पर सब जगह 2 लिख दिया। अब है हमारी मैट्राइसिस कितने की, ऑर्डर की 3x3। सो 3x3, 3 3 व्हाट, 9। और हमारे पास एलिमेंट्स भी कितने हैं, 3, 6 और 3, 9। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितने एलिमेंट्स की होगी, 9 एलिमेंट्स की होगी, राइट। और उसके साथ हमारे पास जो एंट्रीज है 0 एंड 1, 2 पॉसिबिलिटीज है और 9 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर 2⁻9। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटीज 2 एंट्रीज को भरने के लिए और जगह कितनी है, 9 है। सो वी शुड हैव 2⁻9 एंड 2⁻9 विल बी, आप गिन सकते हैं, 2 को आप 9 बार लिख लीजिए क्रॉस 2 एंड इट विल बी 5 1 2। This is the answer. Okay, if you like our videos, just subscribe our channel. Okay, thank you.